Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. O12 class, Miss Rashta Tarak is here. We are learning exercise 5A and we finished up to question number 7. Today we are going to solve question number 8, 9 and 10. So let us see the questions. Again, the topic is same. Solution of quadratic equations. Now we will see the different type of questions. Now look at the question. Question number 8. A part is solve the equations 7f plus f square equal to 60. In the last lecture, I told you that whenever you are to solve a quadratic equation by means of factorization, then the equation should be in ordered form and all the terms should be on left hand side, leaving 0 at right hand side. But here we can see that there is 60 on the right hand side. First of all, we need to shift this 60 onto left hand side, and side by side we need to arrange it. So after doing so, if we shift this 60 onto left hand side, then it will become negative as it is positive on the right hand side, and you know that the sign symbols are changed. Now it is a question we have solved earlier like that, and what we need to do to solve this equation, we need to make the pairs, and those are possible only when there are four terms. So we need to use breakdown method. To We will break this 7f, and for that purpose we will use the factors of 60, and or as we know that 12 fives are 60, and 12 minus 5 becomes equal to 7, as this 60 is having negative sign. So we are going to choose those factors which when subtracted they need to give 7. After doing so, it becomes f squared plus 12f minus 5f minus 60 equal to 0. Now these are four terms, and pairing can be done very easily by using the first two and taking common f from them. We are left with f plus 12 inside the bracket, and from the other two terms, the last two terms, taking negative 5 out means negative 5 is taken common from here. So inside symbols are also changed. This f become positive as we have taken out the negative 5, and 5 12s are 60. We have taken this negative sign outside, so we are left with f plus 12. And as I told you in the previous lectures, that in all the respects these two brackets should be same, order wise, symbol wise, and term wise. Now we will take f plus 12 common, and the remaining things would be written in the other bracket, and we are left with f plus 12 into f minus 5 equal to 0. And when the product of two factors is equal to 0, you know that either first is equal to 0 or the second one is equal to 0. By using the same concept, f plus 12 would be considered equal to 0, and f minus 5 would be written equal to 0, and from there f is equal to minus 12 and f equal to 5, and the answer has been represented by different color, yellow color, showing that this is the answer. Means what you have learned in this question, because questions are of different forms. Whenever you are to solve a quadratic equation, then by means of factorization, then all the terms should be on left hand side, leaving 0 at right hand side. If there is something else,
then you cannot use this rule that either first factor equal to 0 or second factor equal to 0. That is only possible when there is 0 on the right hand side. So it is very much important to leave a 0 on right hand side and shifting everything on to left hand side. Then we will solve. Look at the other part. It is the B part. 15 equal to 8, h square minus 2h. We will shift this 0 or 15 onto the right hand side, and as we do solution on the left hand side, so uh, by using the symmetric property, we will shift the sides, means whole side would be right hand side would be written at left, and the left side would be written at the right. We can do it, and we do it commonly, oftenly, when it is required. Now again, it is the same type of the question. We can see three terms on left hand side, and if we want to make pairs, then we need to break the middle term, provided that these three terms are written in order, and these are written in the ordered form. So by breaking this minus 2h and using the factors of 8 into 15, 8 into 15 becomes 120, and 12 tens are 120, and as we need minus 2 here, so minus 12 plus 10 will give minus 2. In the similar fashion, taking 4h common from here, we are left with 2h minus 3 in the first bracket, and taking 5 common from the last two terms, we are left with 2h minus 3. Again, you can see that both these brackets are same, 2h minus 3 and 2h minus 3 in all the respects. So we need to take this 2h minus 3 common, and we are left with 4h plus 5 in the second bracket, and the product of both these factors is equal to 0. By putting them equal to 0 one by one and then simplifying, we get h is equal to 1 whole 1 by 2, h is equal to minus 5 by 4, and finally it becomes minus 1 whole 1 by 4, and the answer has been represented by a different color, yellow color. तो बेटा इसमें मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्या इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपने इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो आपकी राइट हैंड साइड पर जो है वो 0 होना चाहिए और सारा कुछ आपका होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे. इस क्वेश्चन में क्या था, 15 को हमने शिफ्ट किया है और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया था, तो हमने साइड्स को शिफ्ट कर दिया है. आप ऐसे कर सकते हैं और बहुत दफ़ा करते भी हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हम इस साइड पर जो है वो सॉल्व करते हैं और इधर राइट हैंड साइड पे हमारा 0 होता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. और इसको नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद पेयर बनाकर इक्वल टू 0 पुट करके. यहाँ पे इक्वल टू 0 होना इसलिए ज़रूरी है कि आप फिर ये आइदर और वाला जो रूल है वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 होगा और इधर टू फैक्टर्स होंगे आपके पास. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Solve the equation k into 2k plus 5 equal to 3. Again, we can see a different question. There is no 0 on right hand side. It means we need to mold the whole expression as a quadratic equation, shifting on to the left hand side and leaving 0 at the right hand side. तो क्या करेंगे, इसमें आपने जोड़ और तोड़ दोनों करने बेटा. पहले आप इसको जो है वो कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करके सारा कुछ शिफ्ट कर देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे और 0 को ले आएंगे आप राइट हैंड साइड पे. फिर आप उसके दोबारा से फैक्टर्स बनाएंगे. आपने बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स गिवन है आपको, लेकिन वो गिवन तो है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आइदर और वाला रूल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ जो है वो 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0. और अगर आप 3 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको पहले कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी, सिंप्लीफिकेशंस करना पड़ेंगी. तो सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ये हो जाएगा 2k² प्लस 5k इक्वल टू 3. अब आप इस 3 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, -3 हो जाएगा
और इधर अब आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। अब ये पुराने वाला क्वेश्चन बन गया आपका। तो आप बेटा सारी फॉर्म्स बहुत अच्छे तरीके से देख लें कि आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इन क्वेश्चंस को आप तभी आइदर और वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 0। मैं आपको बता रही हूँ बार बार, अगर वो फॉर्म आपके पास डायरेक्ट नहीं गिवन होगी तो यू वुड हैव टू मेक योर सेल्फ एज वी हैव मेड हेयर। तो इट बिकम्स 2k² + 5k - 3 = 0। अब एक नॉर्मल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आप सोल्व कर लेंगे ब्रेक करने के बाद, और पेयरिंग कर दी हमने, कॉमन ले लेते हैं, k+3 दोनों ब्रैकेट्स में जो है वो आप देख सकते हैं सेम है हर लिहाज से। तो k+3 को कॉमन ले लेंगे, 2k - 1। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 है। ये सिचुएशन हमें चाहिए होती है कि आपके पास टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, तो तब आप आइदर और यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू हियर यूज दिस आइदर और प्रॉपर्टी, k+3 = 0 और 2k - 1 = 0। फ्रॉम देयर k is equal to -3 or 2k equal to 1, and from there it implies k equal to 1/2। उसी लाइन पे मैंने एक्सटेंड कर दिया उसको, बिकॉज मेरे पास कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं थी यहाँ पर। आंसर को मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म खुद से बनानी है। अगेन यहाँ पर आप देखें काफ़ी प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा खुद से। ऑन द बोथ साइड यू कैन सी वेरिएबल्स। तो क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। आप मीन्स आपको जोड़ और तोड़ दोनों चीज़ें करनी है यहाँ पर। 2m² - 10m ब्रैकेट को ओपन कर दिया है मैंने, 5m - 18, लेकिन इतना कर देना काफ़ी नहीं है, हमें करना पड़ेगा सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट, लीविंग 0 ऑन द राइट हैंड साइड। और जब आप 5m और 18 को इधर शिफ्ट करेंगे, इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे और सिचुएशन बन जाएगी 2m² - 10m - 5m + 18 = 0। अब आप पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये m और m वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर देंगे, ये हो जाएगा 2m² - 15m + 18 = 0। और अब आपने करना है इसको फैक्टराइज, 18 × 2 36 का फैक्टर्स बनाएंगे, 12 और 3 हो जाएंगे वो, 2m² - 12m - 3m + 18 = 0। From there, by making pairs and taking common from the first two, we get 2m × m - 6, again taking common -3 from the last two terms, as we have taken negative sign out, so there would be change in the symbol, it would become m - 6, and now again we can see the brackets are same, so it can be taken out, taken as a common m - 6, and the remaining things would be written in the second bracket, those become 2m - 3 = 0, and product of two factors is equal to 0 by putting them one by one equal to 0, and then simplifying we get m = 6 or m = 1 whole 1/2, that is the last आंसर। आंसर को येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। लुक एट द एफ पार्ट। कुछ पार्ट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बेटा छोड़ दिए हैं, और अगर आप ट्राई करें सॉल्व हो जाते हैं अगर आपसे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज शेयर कर दूंगी मैं खुद सॉल्व करके। उसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें से कुछ मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, -5r - 5, और सारा कुछ साइड बाय साइड शिफ्ट भी कर दिया है मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे। और जब आप 7r 58 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 5r और 7r हो जाएगा -12r, -5 और -58 हो जाएगा -63। अब आपको पता है फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है, अगर कुछ ओवरऑल कॉमन हो तो उसको ले लेते हैं, फिर आपके लिए इसके फैक्टर्स बनाने इजी हो जाएंगे। 3 मैंने कॉमन ले लिया है, r² - 4r - 21 जो है वो हमारे पास बच गया है, और 3 को इधर ला के डिवाइड कर दूंगी, और इसके साथ साथ
इसको ब्रेक भी कर दिया है मैंने, 21 के फैक्टर्स चूज कर लिए हैं, 7 और 3, -7 + 3 becomes -4. अब आप 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बिकम इक्वल टू 0. पेयरिंग करके, कॉमन लेके, सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2 फैक्टर्स बन जाते हैं, r-7 into r+3 equal to 0, and then by putting them equal to 0 one by one, r-7 equal to 0 and r+3 equal to 0 means r equal to 7 or r equal to -3. Now look at this g part. 3s plus 1 into s minus 4 equal to -5 into s minus 1. अगेन काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके साथ साथ -5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इट बिकम्स -5s + 5. अब आप इसको शिफ्ट कर देंगे, ये -12s प्लस s हो जाएगा -11s, और ये -5s को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी हो जाएगा +5s -4, एंड दिस +5 विल बिकम -5. साइड बाय साइड में लिख दिया है लाइक टर्म्स को. अब इनको सिंप्लीफाई करके फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज 3s² - 6x - 9. अगेन वी कैन सी दैट 3 इज कॉमन, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद s² - 2s - 3 इक्वल टू 0, और 3 को डिवाइड कर देंगे ऑन द अदर साइड तो वो 0 ही हो जाएगा. अब आपने काफी प्रोसीजर्स देख लिए हैं, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, और उसके साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी, सॉरी इसको मैंने ब्रेक कर दिया है. ये -3s + s इसको लिख सकते हैं. पेयरिंग बनाएंगे, कॉमन लेने के बाद 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, s - 3 into s + 1 equal to 0, and from there by putting them equal to 0 one by one, s - 3 equal to 0 or s + 1 equal to 0, and from there we get s equal to 3 or s equal to -1. So it is the final answer as it has been represented by the yellow color. H part has been left for your practice. Now look at question number 10. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है. आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है. सॉल्व द इक्वेशन 6x² - x - 15 equal to 0. ये एक सिंपल इक्वेशन है मोल्डेड फॉर्म में. हेंस सॉल्व मीन्स के इसी के आंसर को यूज करना है आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. whenever there is such type of question, it means that you are to use the result of first one into second one. तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 6x² - x - 15 equal to 0 के फैक्टर्स बना लें आप. 15 6 are 90 and -10 + 9 will work for this -1x. पेयर बना के, कॉमन लेके और सॉल्व करते हुए हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं, 3x - 5 और 2x + 3 equal to 0. By putting them one by one equal to 0, we get 3x equal to 5 or 2x equal to -3. From there x equal to 5/3 और x equal to -3/2. ये तो जिस पहली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ. इस इक्वेशन को लिख लिया मैंने. अब ये आपके पास जो इक्वेशन है आप इसको पूरा ओपन करके सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हेंस सॉल्व लिखा हुआ है. हेंस सॉल्व का मीनिंग ये है इसका रिजल्ट हमने यूज करना है. अगर सपोज ये जो y - 3 है इसको मैं x इक्वल लेट कर लूं तो क्या होगा. लेट y - 3 इक्वल टू x, देन अबव इक्वेशन इज, तो क्या बन जाएगी. इस y - 3 को रिप्लेस कर दूंगी मैं x के साथ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6x² - x - 15 equal to 0. ये लेट करने से, पुट करने से, और ये तो वही वाली इक्वेशन है जो हमने अभी सॉल्व की थी. तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं अभी, ये सामने लिखा हुआ है आपके येलो कलर से. इट मीन्स के x इक्वल टू 5/3 और x इक्वल टू -3/2 मीन्स आप इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे, यही वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे यहाँ पर. लेकिन x किसके इक्वल था, आप पुट बैक करेंगे, वो y - 3 के इक्वल था. तो यहाँ पर आप x को रिप्लेस कर देंगे y - 3 के साथ. y - 3 इक्वल टू 5/3 और y - 3 इक्वल टू -3/2.
अब आपको y की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, बिकॉज जब आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना होती है। तो y आपके पास हो जाएगा, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा उधर जाकर, हो जाएगा 5/3 प्लस 3। और इसी तरह से इस 3 को शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया मैंने। एलसीएम ले लेंगे बहुत अच्छे से, आपको पता है कि जिसका कोई डिनोमिनेटर ना उसका 1 होता है, खुद से लगा के आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 9/3 दैट इज 14/3, एंड फ्रॉम देयर दैट इज 4 होल 2/3, एंड y जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 3/2 which is equal to 3/2 and which is equal to 1 whole 1/2. Oh, hope to understand, students. Beta, you need to solve the assigned questions yourself. And if you find any difficulty, then you need to inform me. I would help you. And you need to do the practice. These are very much important questions. And this question is different from the others. So you need to do it again and again to get the concept. Hope to understand. Allah Hafiz, up to the next lecture.